Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12th on the same platform of the Life Physics Video channel. As you all know that in the previous lecture we have started our next chapter named as the magnetism, and the previous lecture was totally dedicated on the bar magnet, जहाँ पे हम लोगों ने bar magnets के various formulas like what would be the magnetic field due to the bar magnet, what would be the force, what would be the magnetic field along axial line, along equatorial line, torque acting and the potential energy. But what was the importance of the previous lecture? That means the previous lecture will help you to solve out the sum of the concept of the today's lecture. यानी previous lecture के formulas हमें आज के lectures के कुछ formulas को solve करने में help करेगा. And today's lecture is being completely the part of the CBSE, यानी आज का lecture पूरा का पूरा CBSE belonged है. प्रीवियस में हम बोल सकते थे कि CBSE ने 2021 के लिए उसे रिमूव कर दिया गया है, बट उसे हम लोग नहीं हटा सकते बिकॉज वो आज के लेक्चर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. So let's start with the today's lecture, but with the knowledge of the previous lecture, and I am going to recall whatever be the thing that we discussed in the previous lecture. तो हम लोगों ने बार मैग्नेट को स्टडी किया था. So what are the things that we concluded about the bar magnet? bar magnet के लिए हम लोगों ने क्या चीज conclude किया? That bar magnet has another name is magnetic dipole. क्या नाम दिया? Magnetic dipole. So what is the magnetic moment? Magnetic moment of bar magnet, small m, it is equal to pole strength into the length of dipole. Clear? जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q into 2a, ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला Qm into 2a. After that we find out the formula for magnetic field along axial line. हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड along axial line के लिए फॉर्मूला क्या निकाला? It was mu naught by 4 pi 2m by x cube. So this is the formula for magnetic field when the dipole is short. Please इस बात को कंडीशन को याद रखिए, ये शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन है, यानी डाइपोल शॉर्ट कंसीडर किया गया है, ये उस टाइम का है. Then magnetic field along equatorial is mu naught by 4 pi m by x cube. Okay, that means B axial is 2 times of B equatorial. Then the torque acting on a bar magnet when it is placed in a uniform magnetic field. तो जब आप लोग इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला mb sin theta. And the last but not the least, the potential energy formula is minus pe cos theta 2 minus cos theta 1, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी cos थीटा. ये वो कंक्लूजन्स हैं जो हम लोगों ने बार मैग्नेट के कल पढ़े थे, जो सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिए. चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, एंड द टुडेज लेक्चर इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला. हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्मॉल एम का एक जर्नल फॉर्मूला बनाने वाले. Okay, this is being the formula जो हम लोग डिस्कस करेंगे, and this formula you all know that. In the previous lecture when we talk about the torque acting on a rectangular coil, वहाँ पे हम लोगों ने n को NIA के इक्वल लिया था. Remember? Today we are going to prove this formula. आज हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे. तो देखो कई बार हो जाता है फिजिक्स में कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें प्रीवियसली यानी हम पहले यूज कर लेते हैं, बट उसका टॉपिक और उसका क्लियरेंस हमें आगे जाके पता चलता है. तो चाहते तो हम लोग एनआईए को लास्ट लेक्चर यानी लास्ट चैप्टर में कर सकते थे. वी कैन सॉल्व दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस चैप्टर इटसेल्फ, बट इसमें हमें इस चैप्टर की कुछ चीजों का जरूरत होगा जिनको सीबीएसई ने ऑफिशियली रिमूव कर दिया है. बट m इज इक्वल टू NIA का एक्सप्रेशन को लेके ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है. उन्होंने बस केवल एक्सियल इक्वेटोरियल टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ये डिलीट किए हैं, ये फॉर्मूला नहीं. और इसमें कहीं ना कहीं इनमें से कुछ का यूज होगा. चेक दिस आउट.
तो चलिए m इज इक्वल टू n आइए तो मैग्नेटिक मोमेंट सीधा सा बात है, ये वही प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाती है। तो बेसिकली ये जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी है, बट इसका एक अनदर फॉर्मूला बनाना है हमें, एरिया और नंबर ऑफ टर्न और करंट की फॉर्म में। सो नाउ लेट अस कंसीडर, सो इस फॉर्मूले के लिए हम लोग, तो हमें मालूम है हमारा फॉर्मूला क्या आने वाला है क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा बहुत यूज कर चुके हैं, बट अभी फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सर्कुलर current carrying loop and point along the axis, point कहाँ होगा, along the axis of center। तो अब हम लोग कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, वो केस कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास सर्कुलर लूप था which carries the, let's suppose, I amount of current, and let us consider we have a circular loop of radius r, and we are considering a P point which is along the axis of the center. Let's suppose the distance of that P point is x from the center। याद आया, ये हमारा प्रीवियस चैप्टर का ही है जहां पे हम लोगों ने बाय यूजिंग द बायट-सेवर्ट इसका एक्सप्रेशन बनाया था। तो हम उसी केस को कंसीडर कर रहे हैं, हम डिराइव नहीं करेंगे, वो वहां पे हो चुका है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द पी पॉइंट, फार्मूला क्या आएगा, इफ यू रिकॉल द फार्मूला इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आई स्टैंड्स फॉर द करंट, आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस, डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। This was the expression of the magnetic field at a P point which is on the axis of the circular loop, जो उसके सेंटर के एक्सिस पे। बट यहाँ पे कंसीडर केस बनाते हैं, if point P is very far away from loop, तो एक स्पेशल कंडीशन बनाते हैं। तो हमने केस उठाया है बट उस केस में कंडीशन डालते हैं, और कंडीशन क्या है कि इमेजिन कीजिए पी पॉइंट आपका बहुत दूर है, किसके कंपैरिजन में, लूप की पोजीशन के कंपैरिजन में। तो लूप आपका यहाँ पे और पी पॉइंट को आप वेरी फार अवे लेके जा रहे हो। सो अगर आप पी पॉइंट को बहुत दूर लेके आ रहे हैं तो कौन से फिजिकल पैरामीटर्स में चेंजेस लेके आ रहे हैं, वी आर चेंजिंग दी एक्स। सो मींस द कंडीशन इज x is very greater than the radius of the loop। यानी आप P पॉइंट को इतना दूर लेके गए कि P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस आपके उस सर्कुलर लूप के रेडियस के कंपैरिजन में वेरी लार्ज है, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ द लूप इज वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू x। तो यानी r वेरी स्मॉल है, तो r इज स्मॉल या वेरी स्मॉल कर सकते हैं। ओके, thus r square would be very small as comparison to x square। तो अगर r छोटा है तो डेफिनेटली r square तो और भी ज्यादा छोटा होगा। so thus r square can be neglected। r square को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए r square को नेग्लेक्ट करते हैं। so b is equal to क्या बनेगा, म्यू नॉट आई r square divided by 2 x square whole power 3/2। फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर by 2x। गॉट दिस पॉइंट? ओके, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है जो आप लोगों के दिमाग में आता है जिसे मैं क्लियर करना चाहूंगा, एंड दैट डाउट इज, सर ऊपर वाले पार्ट में भी x स्क्वायर था, सॉरी r स्क्वायर है और नीचे भी r स्क्वायर है। तो मैं ये मोस्टली एवरी टाइम और एवरी ईयर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, एंड दिस इज बीन अ जेन्युइन डाउट, और ये ऑब्जर्वेटरी है जो बताता है कि आपके दिमाग में गया है। तो r स्क्वायर ऊपर भी है और r स्क्वायर नीचे भी है, आपने केवल नीचे वाले को नेग्लेक्ट किया, ऊपर वाले r स्क्वायर को गायब नहीं किया। नाउ द पॉइंट इज दैट बेटा, व्हाट इज दैट पॉइंट मींस, पॉइंट मींस कि r स्क्वायर इज वेरी लेस देन x स्क्वायर।
यानी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बहुत छोटा है। तो ये जो नेगलेक्ट वाली बात होती है इसको समझिए। जब हम लोग ये बोलते हैं कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से छोटा है या कोई भी नंबर किसी भी नंबर से बहुत छोटा है, तो उस नंबर को नेगलेक्ट कर दीजिए। उस नंबर को नेगलेक्ट करने का मतलब है कि हम उस नंबर का नेगलेक्शन कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू दैट नंबर जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यानी फॉर एग्जांपल इफ यू आर एडिंग 2 प्लस 0.004, आप 2 में ये ऐड कर रहे हो, तो अगर आप 2 के साथ इस नंबर को ऐड कर रहे हो और ये नंबर वेरी स्मॉल है, तो हम लोग इस नंबर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस नंबर का जो ऑपरेशन है वो लार्जर नंबर के साथ हो रहा है, एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर नियरली 2 के ही बराबर रहेगा। बट अगर आपके पास कोई एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पास ये 0.0004 ये नंबर इंडिविजुअल है, अकेला बैठा हुआ है, इसके कंपैरिजन में कोई लार्ज नंबर नहीं है, तो हम लोग जब इसके कंपैरिजन में यानी इस स्मॉल नंबर का कोई भी ऑपरेशन लार्ज नंबर के साथ नहीं हो रहा, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम इसी की बात कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग किसी बड़े नंबर के साथ एक छोटे नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू नियरली सेम रहती है, पहली बात। ओके, तो पहली बात तो ऑपरेशन स्मॉल नंबर का या तो एडिशन होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन। इन दैट केस हम नेगलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये नेगलेक्शन तब होगा जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन उस लार्ज नंबर के साथ होगा। तो यहाँ पे जो आपका अपर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर पार्ट में आर स्क्वायर का कंपैरिजन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, यानी ये जो आर स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में है नहीं, ये इंडिविजुअल है, ये स्मॉल वैल्यू है जो आई म्यू नॉट या किसी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आप लोग किसी 2 into 0.004 कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब आप नेगलेक्ट थोड़ी कर सकते हो इसको कि आप ये सोचिए चलो सर इसे नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर 2 ही रहेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0008 जो कि 2 के बिल्कुल इक्वल भी नहीं है, पास में भी नहीं है बिल्कुल। तो पहली बात तो ये जो नेगलेक्शन का ऑपरेशन है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में होता है। जैसे आपने इसे ऐड किया, इट इज 2.0004 जो कि नियरली इक्वल टू 2 है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर नेगलेक्ट होगा जब वो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन हो रहा है जहां की डिनोमिनेटर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हमने नीचे का आर स्क्वायर क्यों बाहर किया और ऊपर का क्यों नहीं, क्योंकि नीचे वाला कंपेयर हो रहा है उसे नेगलेक्ट करेंगे। डन। नाउ फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स क्या करते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमारे पास b along the axial line एक्सिस पे है ना, सो मैग्नेटिक फील्ड along the axis n नंबर ऑफ टर्म्स का क्या आएगा, म्यू नॉट n I r square by 2x2। Is that okay to write? Yes. Now, अब एक छोटा सा काम करता हूं मैं यहाँ पे, I will multiply with the 2 pi और I will divide with the 2 pi। मैं 2 pi से multiply कर रहा हूँ और 2 pi से divide। I think okay है ये equation as it is है। तो हमारे पास पहले magnetic field along axis P point पे ये। So this magnetic field has been already derived by using the Biot-Savart's law। ये पहले derive हो चुका है। Once it has been derived, now we are taking a condition। इस केस में हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं, and condition is when P is very far away। जब आपका P पॉइंट आपसे बहुत ज्यादा दूर है, यानी P पॉइंट को रिंग से बहुत ज्यादा दूर ले गए, तो हम लोग एक R स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, बट डिनोमिनेटर में जहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो ये तो एक टर्म का था ना, एक लूप। Let's suppose आपके पास n number of terms है, तो for n number of terms this would be the formula। चलिए इस फॉर्मूले में मैंने 2 pi से मल्टीप्लाई 2 pi से डिवाइड ओके है। चलिए अब एक बार ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट n I 2। ओके, यहाँ पे r स्क्वायर है तो पाई को r स्क्वायर के साथ लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू r स्क्वायर, डिवाइड में
2 into 2 4 pi x cube. Got that point? चलिए अब हेल्प करो. What is pi r square? R stands for the radius of the loop और pi तो आप जानते ही. तो pi r square क्या होता है? एरिया. So magnetic field along the axis का फॉर्मूला क्या बना? mu naught by 4 pi. ये तो mu naught by 4 pi as it is हो गया. Ni 2 ये 2 बचा हुआ था. pi r square एरिया divided by x. Got this formula? So we modified the formula. हम लोगों ने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया. कौन से फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया? We modified the formula for the magnetic field due to the circular length at a point P along the axis. हमने axis के पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया. Got that point? और n number of टर्म्स के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला. Now, similarly, we are considering another case. Now, at axial point due to bar magnet. अब क्या कंसीडर करें? अब एक बार मैग्नेट कंसीडर करें. सीधी सी बात है. पहले क्या था? एक करंट कैरिंग लूप था. ओके, और ये तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप या कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से भी होगी. और बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. और हम लोगों ने फिर से P पॉइंट कंसीडर कर लिया. और P पॉइंट का बार मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं? x लेते हो. यहाँ पे P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना? x. यहाँ पे भी P पॉइंट का बार मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस x. यानी ये जो दो केसेस हैं, केस नंबर 1 जो हमने पढ़ा है, केस नंबर 2 जो बार मैग्नेट से आता है, जो CBSE ने हटा दिया. अब अगर हम कल ये टॉपिक कंसीडर नहीं करते, मींस प्रीवियस लेक्चर में अगर हम इन टॉपिक्स को नहीं समझते, बार मैग्नेट के लॉजिक को नहीं समझते, आई डोंट थिंक सो आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाते. आपको यहाँ तक तो समझ में आता, बट ये लॉजिक नहीं समझ में आता. तो अब ये ओके है कि हमने एक बार मैग्नेट लिया, फिर से वही P पॉइंट लिया जिसका बार मैग्नेट से सेंटर से डिस्टेंस x है. तो देखो वही P पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस वही x है. ओके, बट दोनों केसेस में फर्क क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? बार मैग्नेट. Here the bar magnet is the source of magnetic field. और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है. तो यहाँ पे बार मैग्नेट सोर्स है, यहाँ पे लूप सोर्स है, बट दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे. ठीक है, और दोनों ही वही P पॉइंट है. तो वही वाली बात है. तो यहाँ पे फॉर शॉर्ट मैग्नेट, मैग्नेट कैसा कंसीडर किया? शॉर्ट. मैग्नेट शॉर्ट बोलने का मतलब है P पॉइंट बहुत दूर है, यानी x is very greater than the size of the magnet. जो x है वो मैग्नेट की लेंथ से बहुत बड़ा है, 2a से. और अगर ये है तो हमारा फाइनल फॉर्मूला अलोंग दी एक्सियल लाइन क्या आता है? mu naught by 4 pi 2m by x cube. इक्वेशन नंबर 2 ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल बनाया था. सो बात को ध्यान से सुनिए. ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज वेरी फार अवे. बट कहां से? लूप से. ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला भी मैग्नेटिक फील्ड का है. कहां पर? एट अ पॉइंट. कहां पर है वो पॉइंट? वेरी फार अवे. बट किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से. तो यानी दोनों जो फॉर्मूले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों ही फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के हैं. एक ऐसे पॉइंट पे है जो एक्सिस पे है, यानी एक्सियल लाइन पे है. ये सेंटर की एक्सिस पे था, ये बार मैग्नेट की एक्सिस पे था. और दोनों ही पॉइंट की लोकेशन वेरी फार अवे फ्रॉम दी सोर्स है. यहाँ पे सोर्स करंट कैरिंग लूप है और यहाँ पे सोर्स बार मैग्नेट है. सोर्स चाहे अलग हो बट है तो वही पॉइंट. और अगर ये दोनों पॉइंट वही है, सो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, what we are going to do? By comparing equation 1 and 2. तो चलिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 और 2 को. mu naught by 4 pi क्या है इक्वेशन 1?
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2NIA बाय x क्यूब इज इक्वल टू इक्वेशन 2 बार मैग्नेट की म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x क्यूब। म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल, x क्यूब कैंसिल, 2 कैंसिल, और यहां से m का एक्सप्रेशन क्या मिला, NIA। And here is the proof that what is the formula for the magnetic moment? The formula for the magnetic moment is also NIA। एक तो है, एक फॉर्मूला तो है मैग्नेटिक मोमेंट का, क्या, पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, बट एक और फॉर्मूला है M is equal to NIA। Hope you got it? So please इस डेरिवेशन और इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखना। मैंने कहा ना, हम ये एक्सप्रेशन लास्ट चैप्टर में कर सकते थे क्योंकि ये तो लास्ट चैप्टर का ही है, बट जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता आई थिंक ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई बार मैग्नेट को हमेशा स्टडी करना, हमेशा देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको इजी भी रहेगा फ्यूचर के कॉन्सेप्ट। तो देखो बार मैग्नेट का एक कॉन्सेप्ट तो हमने यूज कर लिया है यहाँ से। तो चलिए अब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं। लाइक द फर्स्ट थिंग इज जो पहली चीज हम लोग इसका करने वाले हैं, दिस वन इज SI यूनिट। तो चलो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। सो नंबर 1 m का, n नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होता, I एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द SI यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। सो एम्पियर का A और मीटर स्क्वायर का L2। सो L2A, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। मास नहीं है तो m0 t0 भी चले, ठीक है। चलिए, बट इसी के साथ साथ एक और छोटी सी SI यूनिट और है जो मैं चाहता हूं, और वो है SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। हम इसके बारे में बहुत बार भूल जाते हैं, बट इसकी SI यूनिट भी निकालनी जरूरी है। तो m इज इक्वल टू qm बाई 2a। तो यहां से qm क्या आएगा, सिंस qm इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट बाय 2a। यहाँ पे a का मतलब है लेंथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, कैंसिल। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर। And what would be the dimension formula? So dimension formula क्या होगा, LA। क्योंकि करंट आप जानते हो, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन A ही होगा। So here we have the expression for the magnetic moment। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट अलोंग एक्सियल लाइन को यूज किया। प्लीज चेक आउट एंड प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। Okay students, so we derived the formula for the magnetic moment, and since we know the officially the formula for the magnetic moment, एक तो है हमारे पास qm into 2a, और अगर मैं फॉर्मूलेस की लिस्ट में ऐड अगर कर दूं तो m का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास NI, और फिर यही फॉर्मूला अब हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए एनहांस करता है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। We have to find out what magnetic moment of electron। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी हॉट्स की कैटेगरी में आता है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड 3 to 4 times डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन इन द बोर्ड एग्जाम। यानी डेरिवेशन में ये कम से कम 3 से 4 बार डायरेक्टली आ चुका है। न्यूमेरिकल आते हैं वो भी हैं, तो हम इस टॉपिक्स और हमारे जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एंड यू कैन डाउनलोड द न्यूमेरिकल और दैट असाइनमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन, और बहुत इजी है। सो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डेफिनेटली वी ऑल नो दैट एट द सेंटर पे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस। सो वी हैव अ न्यूक्लियस of charge Ze, where Z represents the atomic number and E represents the basic charge, and around that nucleus what is revolving, around that nucleus an electron is revolving। so हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
around the nucleus in a circular orbit of radius r with the velocity v. And you all know that whenever any body revolves over the circular path, जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा along the tangent. So what we have, let us consider an electron of charge E. उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं अभी, ओके? हाँ, जहाँ पे डायरेक्शन का बात आएगा तब हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे. तो हम लोगों ने एक चार्ज कंसीडर किया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, E. revolves around what? It revolves around a nucleus. It revolves around a nucleus in a circular orbit. In a circular orbit of radius small. तो आप एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है विद वेलोसिटी v. विद वेलोसिटी v. तो डेफिनेटली टॉपिक को समझिए. टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट. तो डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट तभी होगा जब आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रॉपर्टी आए, चाहे वो एक परमानेंट मैग्नेट जिसे हम लोग बार मैग्नेट बुलाते हैं उसकी वजह से. तो पॉइंट इज दैट मैग्नेटिक मोमेंट तब होगा जब आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. अब मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्यों है, अब इसे समझिए. हु इज रिवॉल्विंग? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. तो एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है बेटा, और जब चार्ज मूव करता है यानी किसी भी पाथ पे जब वो मोशन में आएगा तो डेफिनेटली जब भी चार्ज मूव करेगा तो करंट इफेक्ट बनेगा. एंड अकॉर्डिंग टू और ये स्टेट, व्हेनेवर देयर इज अ करंट इफेक्ट, जब भी कोई करंट इफेक्ट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट तो जरूर होगा. तो डेफिनेटली हमारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां पे करंट इफेक्ट भी होगा, और अगर करंट इफेक्ट होगा तो उसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा. यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं, ओके? और हमें वही मैग्नेटिक मोमेंट उसका कैलकुलेट करना है. बट जैसे मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक मोमेंट दो फॉर्मूले हैं, दोनों वही चीज है पर दो अलग अलग फॉर्मूले. फर्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ है, और पोल्स किसके पास होता है? बार मैग्नेट यानी परमानेंट. तो इसके पास कोई पोल तो है नहीं, यानी कोई बार मैग्नेट तो है नहीं, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते. सेकेंड फॉर्मूला किसकी टर्म में है? करंट की टर्म में. तो देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट करंट कैरिंग लूप तो है नहीं कि जहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्ट करंट तो बनेगा क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है. तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली फॉर्म ऑफ करंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट है क्योंकि करंट चार्ज की वजह से होता है. तो हम लोग इस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे और यहीं से जाएंगे. सो thus फॉर वन टर्न, फॉर कितने टर्न? एक टर्न के लिए बात कर लेते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू. यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल थोड़ा सा अलग दे रहे हैं, एंड द सिंबल इज गोइंग टू बी म्यू. जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं इन द लाइट, वही हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज करते हैं. व्हाई? इस बात के लिए एक छोटा सा रीजन कि सर हम लोगों ने पहले स्मॉल m रखा, अब आप अचानक से म्यू रख रहे हो. तो वैसे जनरली जब भी हम लोग मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप कहीं पर भी पढ़ते हैं तो हम हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल m रखते हैं. बट जब चार्ज यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात आती है, क्योंकि देखो प्रोटॉन तो मूव होते नहीं है, तो क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में स्टेट है, वो भी बिल्कुल फिक्स पोजीशन में बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, तो मूव तो केवल इलेक्ट्रॉन करेगा. तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं मास होता है. व्हाट द इलेक्ट्रॉन हैज? इलेक्ट्रॉन हैज मास डेफिनेटली, और मास का एक यूनिवर्सल सिंबल है क्या? स्मॉल m. तो इसलिए वो कोलैप्स ना हो, इसलिए हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट को ही म्यू सिंबल दे दिया इलेक्ट्रॉन पर्पस के लिए. अदरवाइज आप स्मॉल m ही रखेंगे.
तो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला क्या है, NIA, बट n कितना है 1, तो म्यू का फॉर्मूला I into A. This is our first formula. Now, thus, what is the area? A. एरिया कितना होगा, सर्कुलर लूप पे घूम रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट पे जिसका रेडियस कितना है r, तो एरिया कितना हुआ पाई r स्क्वायर. सिंपल था. अब आ जाइए करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट भी नहीं है तो I is equal to, you all know that Q by T. तो हम जानते हैं I is equal to rate of flow of charge Q by T. तो कौन रिवॉल्व कर रहा है, E रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. T stands for time, definitely. But हमने कितने टर्न्स लिए, we have taken how many turns, we have taken one complete turn. हमने इलेक्ट्रॉन के पूरे एक टर्न को स्टडी किया है. उस पूरे एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ट्राई कर रहे हैं. सो वन टर्न को अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली टाइम भी वन टर्न का होगा. एंड व्हाट यू कॉल द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन टर्न, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. क्या बुलाते हैं उसे, टाइम पीरियड. हमारे पास आई का फॉर्मूला E by T, एंड यू ऑल नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैग्नीट्यूड E. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, फिर से वही बात, किस चीज की बात हो रही है, वन टर्न की बात हो रही है. तो वन टर्न में कितना डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, और वेलोसिटी कितनी है, v है. तो यहां से हमारे पास I का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E divided by 2 pi r into v. So we got the formula for both. हमें दोनों चीजों का फॉर्मूला मिल गया. किस किस का, हमें करंट का भी एक्सप्रेशन मिल गया एंड एरिया का. So thus by equation 1 से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन mu is equal to क्या है, I into A. What is I? EV divided by 2 pi r into area is pi r square. And if we try to solve, pi cancel with the pi and 1 r with the r. So magnetic moment EVR by 2. So what is the formula for magnetic moment of the electron? The formula for the magnetic moment of the electron is EVR by 2. और यही आपके लिए न्यूमेरिकल, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है. यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन दैट असाइनमेंट लिंक. ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, EVR by 2, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2. गॉट दैट पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, बट चेक दिस आउट, एक बार इस बात को ध्यान दें. तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो E है, मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलिए एक बार इसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेंज में बात करता हूं मैं, ऑर्डर में, तो 10 की पावर -19 ऑर्डर का होता है. V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. तो इन द एटम चैप्टर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्कूल में मॉडर्न फिजिक्स में देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो बोर्स ने हमें निकाल के दी थी, it is 1/137 c by m. c stands for speed of light, और speed of light का ऑर्डर होता है 10 की पावर 8. मैं केवल ऑर्डर का बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू का नहीं. लास्ट इज द रेडियस, किस ऑर्बिट पे घूम रहा है. तो ये तो आप जानते हैं कि हमारे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.53 n² एंगस्ट्रॉम. ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये हमारे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का. मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी ऑर्बिट हो, तो यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम. एंड एंगस्ट्रॉम मींस ऑर्डर इज 10 की पावर -10. तो नाउ चेक दिस आउट कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने निकाला, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने निकाला, ये मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस ऑर्डर का आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है. इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर 10 की पावर -19 में होता है. स्पीड ऑर्डर 10 की पावर 8 में आ जाएगी. चलो हाथ मार के, वैसे तो 1/137 है, पर 10 की पावर 8 में आ जाएगी. और रेडियस एंगस्ट्रॉम में होती है, तो वो मान लो 10 की पावर -. यानी ओवरऑल जो आंसर आएगा वो वेरी स्मॉल आएगा, 10 की पावर -19, 8 -10. आप चेक कर सकते हैं. इसका मतलब म्यू,
यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकली इज स्मॉल और लार्ज, इट इज ऑलवेज न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल, यानी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट वेरी स्मॉल होता है, यानी उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो बहुत छोटा होगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर को इलेक्ट्रिक मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का वो बिहेवियर दिखाता है। जब हम एक डायपोल की बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नेट हमेशा ऑब्वियसली बात है डायपोल ही होगा, क्योंकि एक एंड नॉर्थ है तो दूसरा एंड डेफिनेटली साउथ तो होता ही होता है। तो अगर वो एक डायपोल है तो डायपोल की प्रॉपर्टी मोमेंट से समझ में आती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोमेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, और वही उसकी स्ट्रेंथ और उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है, क्योंकि मोमेंट आपकी पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा होगा, पोल की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और ये तो आप जानते हो, पोल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, वो न्यूमेरिकली कुछ और हो, बट मैग्नेटिक मोमेंट तो डायरेक्टली हो। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा स्मॉल आती है। सो सिंस magnetic moment mu for electron is very small, हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। thus it behave as a tiny magnet। तो डेफिनेटली अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में के चारों तरफ, तो डेफिनेटली वो मैग्नेट की तरह तो बिहेव करेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट इफेक्ट होगा, करंट इफेक्ट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। बट वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत छोटा होगा। इसलिए जब आप लोगों ने बोर्स मॉडल पढ़े, या फिर जब भी आप लोगों ने एटम को पढ़ा, चाहे कहीं पर भी पढ़ा, तो आप लोगों ने ओवरव्यू में, किसमें, ओवरव्यू में यानी जर्नल एस्पेक्ट में कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं देखा। आपने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा दिया, कूलम्स लॉ, बट कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट वहां प्रेजेंट है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट वहां प्रेजेंट है, बट वो इतना टाइनी है कि हम उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसलिए हम लोग जनरली नहीं देखते हैं। बट जब बात स्पेशली मैग्नेट की चली रही है तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो यानी इलेक्ट्रॉन भी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बट क्यों टाइनी, क्यों स्मॉल, क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत स्मॉल है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सिंस, वैसे तो डेरिवेशन हो गया, बट कई बार बोर्ड इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे ही पूछ लेता है। सिंस को क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। तो सर्कुलर पाथ पे तो डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा, उसकी वेलोसिटी एंगुलर होगी, एक्सेलरेशन एंगुलर होगा, और सबसे लास्ट थिंग उसका मोमेंटम भी एंगुलर ही होगा। तो सिंस एंगुलर मोमेंटम, क्लास 11 थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, होता कि नहीं होता? तो चलिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो thus मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंट, दोनों इक्वेशंस का रेशियो निकाल लेते हैं। लेट अस गिव दिस एज अ इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट अस गिव दिस एज अ 3। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 हेल्प करना मुझे, EVR by 2 divided by MVR, VR cancel with the VR, so mu by L means the ratio of magnetic moment of electron and angular momentum, it is equal to E by 2m। कितना आया, E by 2m। और what is E stands for? E stands for the charge of electron। What is M stands for? M stands for the mass of electron। और ये जो दोनों चीजें हैं E और M, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? डेफिनेटली बोथ आर कांस्टेंट। ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलेगा ना इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये जो पूरा टर्म हुआ, ये जो E by 2m है, ये पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। और इस पूरे कांस्टेंट को हम लोग बुलाते हैं गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट या गायरोमैग्नेटिक रेशियो।
means the ratio of magnetic moment of electron and angular momentum. इसी रेशियो को ही हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बुलाते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होगी 8.8 into 10 की पावर 10 कूलम पर केजी. फॉर द नॉलेज से इसकी वैल्यू आप लोग याद रखिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट? द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट इज 8.8 into 10 की पावर 10. Okay, so the ratio is 8.8 into 10 की पावर 10 कूलम पर केजी. इसके ऐसा यूनिट पे ध्यान देंगे, इट इज बीन कूलम पर केजी. वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, 8.8 ओके 10 की पावर 10 प्लीज, तो मैं स्पीड कर रहा था. so 8.8 into 10 की पावर 10 कूलम पर केजी. सो वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो यहाँ तक हो गया, बट ये कई बार यहाँ पे भी पूछ लेते हैं. ठीक, अब अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? E by 2m into L आएगा. If you transfer the L on that side, or in vector form, अगर हम इसे वेक्टर में लिखें तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वहीं पे होगा जहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. यही तो फॉर्मूला लगा है, बस सिंबल ही तो अलग है. इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का साइन लेंगे क्योंकि आप डायरेक्शन दिखानी है, E by 2m, और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी. So what is the final expression we have? We have final expression that mu vector means the magnetic moment vector is equal to negative of E by 2m into angular momentum vector. यानी म्यू वेक्टर हमेशा नेगेटिव E by 2m into L वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखना है तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं. सो नाउ एवरीवन प्लीज चेक दिस आउट, दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को आप लोग चेक करें और एक बार इसे ध्यान से समझें. डन? चलिए. ओके, नाउ मोस्टली लोग ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं. वी हैव डन द टॉपिक, बट अभी भी वही वाली बात है, कुछ लॉजिकल और बेसिकली कई बार कंपटीशन बिहाफ से यहाँ से कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं. चलिए उसे एक बार देख लेते हैं. सो डन. ओके, नाउ हमारे पास म्यू वेक्टर आया क्या? म्यू वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव E by 2m into L वेक्टर. तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप जानते हैं. फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है? ऑलवेज द नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट दी डायरेक्शन. ये तो आप बिल्कुल जानते हैं. तो यहाँ पे डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की और किसकी? L वेक्टर की. यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस. है? तो डेफिनेटली अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, कहाँ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट? ऊपर की तरफ. और मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होता है? जहां पे एरिया वेक्टर होगा. तो इफ म्यू वेक्टर इज अपसाइड तो इसका जो L वेक्टर है वो किस तरफ होगा? डाउन की तरफ. सो व्हाट डज दैट नेगेटिव साइन इंप्लाइज? नेगेटिव साइन implies that L vector would be opposite to what? Mu vector. Means the direction of angular momentum would be opposite to the direction of magnetic moment, and this is the magnetic moment of electron. हम लोगों ने इसका एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया, फिर उसे L के साथ करते हैं. अब अगर मैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताऊं तो यहां से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो ये, प्रूव दैट. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज प्रूव दैट म्यू वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव E by 2m into L वेक्टर. मैंने कहा ना ये बोर्ड में 3 से 4 या 5 टाइम्स आ चुका है. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 4 to 5 टाइम्स इन द बोर्ड डायरेक्टली. और जब भी वो डायरेक्टली आता है हमेशा यही आता है, that mu vector is equal to negative E by 2m into L vector. Prove that, and what does that negative sign implies? तो वो negative sign क्या imply कर रहा है? तो definitely prove कीजिए और उसकी implementation कीजिए.
गॉट दैट पॉइंट? चलिए, नाउ सिंस हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है, और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो व्हाई वी आर डीलिंग विद द मैग्नेटिक मोमेंट, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा एंगुलर मोमेंटम को लेके आए, और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जिसने हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाई की थी अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन. सो सिंस यू ऑल नो दैट, since according to Bohr's quantization, okay, the students, ये आप जानते हैं, ये हम लोग एटम चैप्टर में ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स स्कूल टाइम में पढ़ चुके हैं, एंड इन फ्यूचर ये आपके 12th क्लास के पार्ट 2 एटम चैप्टर में आएगा और हम लोग इसे प्रूव करेंगे. तो बोर क्वांटाइजेशन क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू mvr इज ऑलवेज इक्वल टू nh/2 का. ये तो आप जानते हैं ना, होता है ये एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू nh/2 पाई. तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे यूज करें, सिंस म्यू इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2m into L, और हम L को ये यूज कर सकते हैं, thus म्यू कैन आल्सो बी रिटन एज E/2m into nh/2 का. ओके, नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सा? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, और अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें यानी n इज इक्वल टू 1, तो म्यू क्या आएगा? EH/4 pi m. सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट किसका? इलेक्ट्रॉन का. कौन से एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम. क्लियर है? और वो भी इसके फर्स्ट ऑर्बिट. और अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं, व्हेन यू सॉल्व दिस, म्यू इज इक्वल टू EH/2 pi m. check this out. what is the value of E? it is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19. H Planck's constant 6.6 into 10 power negative 34. 2 pi and mass of electron is 9.31 into 10 की power minus 30. And when you solve this, you will got the value of mu. Mu की value आपको मिलेगी 9.9 into 10 की power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है किसका? इलेक्ट्रॉन का. कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो वेरी स्मॉल है, 10 की पावर माइनस 24 में जा रहा है. ओके, इसलिए हम लोग इसे कई बार कंसीडर नहीं करते जब हम एक ओवरव्यू में देखते हैं, बट जब बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है इस टॉपिक में, तो हम लोग उसके पूरे फोकस में हैं. तो देखो बोर्ड में जो एक्सप्रेशन आता है वो हमेशा यहाँ तक प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट अप टू हियर, तो आप उसको नेगेटिव साइन भी बता सकते हो. तो आपको फ्यूचर में आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपके साथ इसलिए जा रहा हूँ कि इन केस अगर टीचर ने आपको आगे पूछा तो आप आगे जाएंगे. और ये जो फैक्टर आपके सामने आया म्यू इज इक्वल टू EH/2m, जो कि एक कांस्टेंट फैक्टर है. क्या ये कांस्टेंट फैक्टर है? और इसे बुलाते हैं बोर्स मैग्नेटॉन. क्या बुलाएंगे आप लोग इसे? वी विल कॉल दिस एज अ बोर्स मैग्नेटॉन. ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग दो रेशियो पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के अंदर. पहला रेशियो E/2l, जिसे आप लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो बुलाएंगे. यू विल कॉल दैट एज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो. एंड द सेकंड वन इज बोर्स मैग्नेटॉन, यानी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट पे, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट पे आपका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसे ही हम लोग बोर्स मैग्नेटॉन बुलाते हैं. तो आप एक तरीके से बोल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर्स मैग्नेटॉन? बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होती है? 9.9 into 10 की पावर, सॉरी 9 minus 6 please, it was 9.29, sorry
When you solve this, it would be 9.29. Its value is 9.29 into 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और हम लोगों ने एक और लिखा है, चलो उसे भी लिख लेते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। So गायरोमैग्नेटिक रेशियो, its value is 8। ओके, इसकी वैल्यू जो हम लोग लिख के आए थे, कितनी आई थी हमारे पास वैल्यू इसकी? इट इज 8.8 into 10 power 10 coulomb per kg. So in today's topic we get to know about two new more constants. दो डेरिवेशंस की हैं हम लोगों ने अब तक। फर्स्ट डेरिवेशन वाज फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट NIA, और सेकंड जब ये NIA डिराइव हो गया तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाला EVR/2, बट उसके साथ बाद हम लोगों ने उसे एंगुलर मोमेंटम के साथ कंपेयर किया और फिर हम लोगों ने वहां पे बोर्स क्वांटाइजेशन भी अप्लाई किया। नाउ इन द बोर्ड एग्जाम आपको ट्रीट वहां तक करना है जहां तक आपसे पूछा है। अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है सो डू अप टू EVR/2 जो हम लोगों ने किया। अगर आपसे ये प्रूफ करने को बोला है तो यहां तक करो। अगर आपसे नेगेटिव साइन का इम्प्लीमेंटेशन पूछा है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं भी पूछा है तो आई विल सजेस्ट प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि ये आपको एक गुड इंप्रेशन देगा कि दैट यू नो अबाउट द डायरेक्शन। बट अगर आपसे फिर आगे जाके बोर्स मैग्नेट्रॉन के बारे में पूछता है जो कि वेरी ओकेजनल है, वेरी रेयर है, बट अगर वो आपसे जाके पूछता है, इन दैट केस आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर दिया है, बट आप इसे पूरा मत रखिए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको एग्जाम में उतना ही लिखना है, बट अंडरस्टैंड पूरा करना है। सो हियर वी कंप्लीटेड टुडे 2 टॉपिक्स। तो आज हम लोगों ने हमारे 2 टॉपिक्स को कंसीडर किया। सो आई होप यू गॉट ऑल बोथ द टॉपिक्स। आप लोगों ने दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए और आज हम लोगों ने इस इक्वेशन को यूज किया। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स बाकी हैं जिनमें हम लोग फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं, जिनमें हम लोग अपने टॉर्क एक्टिंग को भी और आगे जाके अदर कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करेंगे। सो वी विल टेक दैट एज इन अ फ्यूचर लेक्चर। सो टिल देन दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इन दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही। In the description box you can check out for the assignment. आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे from the magnetic moment of the electron, from the NIA, वहाँ से आपको अवेलेबल मिलेंगे। Okay, so hope you understand। जो भी आपके डाउट्स आप उन्हें क्लियर करेंगे and complete this because we are going to meet with the next lecture soon। हम लोग अगले लेक्चर के साथ थोड़ा जल्दी मीट करेंगे क्योंकि ये थोड़े से क्विकली होने चाहिए। So please complete this up। Thank you very much बेटा।